हाँ اس میں کیا اس حاصل وقت ہوا؟ میں بوڑھا نہیں تھا، ان کی طرح تھا۔ ایک انہی نے پیغام بھیجا جو یہ فوراً سے مان گئے، یہ پہلے شادی شدہ تھے؟ ہاں جی، یہ پہلے شادی شدہ تھے، اچھا، 3 بچے بھی تھے؟ جی 3 بچے ہیں، تینوں مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں، فون کرتے ہیں مجھے۔ ٹھیک، 65 کے ہی لگتے ہیں۔ نہیں 17 سال پہلے بھی آپ 65 کے تھے، آج بھی 65 کے۔ کیا کھاتے ہیں آپ؟ اپنی ڈائٹ بھی بتائیں، لوگ جاننا چاہیں گے۔ تو جو نہیں ہے اوئے تو ہوئے، کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا اونچی۔ یہ مانا کہ محفل جہاں ہے ہنسی ہے۔ کیا محسوس ہونے لگ جاتی ہے، جیسے یہ جانے کا کہتے ہیں نا تو میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے کیوں جا رہے؟ کہ میں اکیلی رہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ کہتے ہیں محبت بڑی چھوٹی سی چیز ہے، ایویں ہی ہو جاتی ہے، لیکن محبت کے اوپر بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ جب وہ ہو جاتی ہے نا تو انسان پھر جس سے ہو جاتی ہے وہ عشق ہے یا محبت کے اوپر کا کوئی لیول ہے، آئی ڈونٹ نو، مجھے تو اس بات کا بھی نہیں پتا، لیکن جب وہ ہو جاتی ہے تو پھر انسان اس کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ میرے ساتھ آج ایک کپل موجود ہے، میں تقریباً گجرات کے پاس ہوں، وہاں پہ علاقہ ہے جہاں پہ ایک کپل موجود ہے۔ جو کپل ہے ان کے ہسبینڈ کی ایج ہے اس ٹائم 80 سال اور ان کی ایج ہے 40 سال۔ یہ شادی کیسے ہوئی، کتنے سال کی محبت ہے، کس نے پرپوز کیا؟ انہوں نے جب فون کیا تو ایک بات کی جو میرے دل پہ جو ہے نا گھر کر گئی، اس لیے مجھے روزے کے ساتھ یہ سٹوری کور کرنی پڑی۔ تو جانتے ہیں، ذرا دل تھام کے بیٹھیے گا لوگ، تو جانتے ہیں ان کی سٹوری، ان کی زبانی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک۔ کیا نام ہے؟ نجمہ خان۔ نجمہ خان جی۔ جی السلام علیکم، آپ کا کیا نام ہے؟ محمد سلیم خان۔ محمد سلیم خان۔ اب آپ ان کے نام سے ہی جانی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، فخر محسوس ہوتا ہے بہت زیادہ جی۔ اللہ کا اچھا نجمہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی ان کے ساتھ دوسری شادی ہے اور ان کی بھی آپ کے ساتھ دوسری شادی ہے، جی۔ یہ شادی طے کیسے پائی؟ آپ کی پہلے شادی ہوئی، وہ ٹوٹی کیسے، پھر ان کے ساتھ شادی کیسے ہوئی؟ وہ پہلے شادی جو ہوئی تھی وہ 5 سال گئی، اچھا تو اللہ کی طرف سے یا باقی ان کی حالات کچھ ایسے تھے، وہ ان کی عادتیں کچھ ایسی تھی ٹھیک ہے، کہ وہ ٹوٹ گئی۔ اچھا وہ ٹوٹ گئی تو اس کے ساتھ ہی یہ میرے تایا ابو کے گھر آتے تھے، تو ان کے ساتھ رہنا اور باقی ان کے بارے میں کافی کچھ سننے کو ملا تھا۔ اچھا، بہت اچھے ہیں۔ نہیں، یہ آپ کے تایا ابو کے گھر آتے تھے، جی، ان کے دوست تھے؟ دوست آپ کی پہلی شادی اس وقت ٹوٹ چکی تھی 5 سالوں کے بعد؟ ٹوٹ چکی تھی۔ کتنی عمر تھی آپ کی؟ میری جب پہلی شادی ہوئی تھی تو 10 سے 12 سال، اچھا، 5ویں میں پڑھتی تھی میں جب میری پہلی شادی ہوئی تھی۔ 12 سال کی عمر میں پہلی شادی؟ 12 سال۔ اچھا، پھر اس کے بعد تقریباً 6 ماہ 7 ماہ کے بعد خان صاحب سے شادی ہو گئی تھی۔ یعنی کہ 5 سال کے بعد 17 سال کی ہو گئی؟ ہاں، جب 17 سال کی۔ ان کے ساتھ جب 17 شادی سال ہوئی تو کی، ان کی عمر کتنی تھی؟ ان کی اس وقت 65۔ 65 تھی اور آپ 17 کی تھی۔ جی، گھر والوں نے دیکھا نہیں کہ وہ کس کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، اتنے بوڑھے ہیں آپ کے ابو کے لیکن زیادہ عمر دیکھیں کے؟ نا، جو شادی انہوں نے اپنی مرضی سے اور خوشی سے کی تھی، ہاں، اس میں کیا اس حاصل وقت ہوا؟ میں بوڑھا نہیں تھا، ان کی طرح تھا۔ ایک میں آپ سے بعد میں پوچھتی ہوں۔ ہاں جی جی، اچھا اچھا، وہ اس میں کیا حاصل ہوا؟ وہ بھی تو 40 سال کے تھے، وہ کون سا چھوٹے تھے۔ اچھا، پہلے ہسبینڈ؟ جو ٹھیک جی جی، 5 سال کتنے ظلم سہے آپ نے؟ اس کی تو بیان بھی نہیں بندہ کر سکتا۔ بہت زیادہ تکلیفیں دیکھی، بہت زیادہ، کہ مارنا پیٹنا، رات کو 2 2 بجے اٹھا کے، سوئے ہوئے اٹھا کے تو پیٹنا شروع کر دیتے تھے۔ اچھا، یہ تو میں سوچتی ہوں کہ میری ظلم کی وجہ سے، میرے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام تحفہ دیا ہے مجھے، اچھا، یہ گوڈ گفٹ۔ وہ آپ نے سنا ہے کہ کیا کہتے ہیں، اولڈ از گولڈ؟ ہاں جی، یہ وہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے میرے پہ۔ شادی یہ ادھر اس سے وقت ٹوٹی؟ کی بھی تجت، نفل، عبادت، روزہ، یہ اس کا سارا صلہ اچھا، وہی ہے۔ یہ آپ کے تایا ابو کے گھر آتے تھے؟ جی، پھر آپ نے ان کو دیکھا ہوا تھا؟ نہیں دیکھا تھا یہ۔ اچھا، آپ جب نے میں ان کو نے دیکھا نہیں تھا؟ سنا تھا ان کے بارے میں کہ بہت اچھے ہیں، آرمی آفیسر رہے ہیں، بہت اچھے ہیں، 65 کی اور 71 کی جنگ بھی انہوں نے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد میں نے پھر اپنی نانی سے کہا کہ ان کے بارے میں بہت سنا ہے، تو وہ بھی اکیلے رہتے ہیں۔ اچھا وہ بھی اکیلے رہتے ہیں، اچھا، تو اگر آپ نے کوئی سوچنا ہے تو ان کے بارے میں سوچیں میرے لیے۔ تو میں نانی ان سے ملی تو پھر ماموں کی بیٹیاں بھی ملی۔ یہ آپ کو پتا تھا عمر 65 سال ہے ہاں، پتا اس تھا، وقت؟ پتا تھا۔ پھر بھی آپ نے نانی کو کہا؟ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میری ایج میں اتنا، تو بعد میں یہ نہ کہنا تم، پھر ایسے ویسے۔ آپ تو کی میں ان نے سے کہا پھر تھا کہ میں ملاقات پاگل ہوئی؟ ہوں ایسے کہوں گی۔
मुलाकात फोन पे बात हुई थी, मुलाकात नहीं हुई थी, अच्छा ठीक है, फोन पे ही बात हुई थी, देखा नहीं था आपने? देखा नहीं था। फिर एक्चुअली मेरी कजनें थी, मामू की बेटियां, आज भी मैं सोचती हूँ उनकी वजह से शायद उन्होंने भी ओके किया था, मेरी नानी ने भी, तब जाके ये शादी तय पाई थी। ठीक है, तो जब शादी आपने खुद यानी कि इनको पैगाम भेजा, नानी ने जी, जी। पैगाम भेजा, तो ये फौरन से मान गए? ये पहले शादीशुदा थे? हाँ जी, ये पहले शादीशुदा थे। अच्छा, 3 बच्चे भी थे? जी, 3 बच्चे हैं, तीनों मुझसे राब्ते में रहते हैं, ठीक फोन है। करते हैं मुझे। ठीक है, जी, फिर पैगाम गया? पैगाम किया तो हो गया, तय पा गया कि जी शादी कर लेते हैं, ठीक है। आए थे अपनी फैमिली के साथ, अपनी बहन के साथ, भाभी के साथ, तो देखा था तो बहन भाभी ने भी ओके कर दिया था, वो भी मान गई थी कि चले हमें तो यही चाहिए ना कि दरवाजा खुला हो हमारे भाई का, अकेले रहते हैं, उनका ख्याल करने वाला हो। तो आप भी इनकी जो फैमिली है वो जो इज्जत देती है ना, वो इज्जत देख के भी इंसान दोबारा जिंदा हो सकता है, वो जो मुझे इज्जत देती है। इनकी फैमिली, इनके भाई, इनके भाभी, इनके बच्चे, भतीजे भतीजियाँ, वो जो मुझे इज्जत देती हैं, इनके बच्चे भी जो मुझे वो इज्जत देते हैं ना, तो मेरी ऐसे लगता है जैसे 4 चांद लग गए। आपकी शादी को अब कितने साल हो गए? 17 साल हो गए। अच्छा, 17 साल का अरसा आपने इनके साथ गुजारा है। बहुत तेजी से गुजर गया। कुछ कहना था जो कह नहीं सके? बहुत कुछ कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, अच्छा, मेरे से ज़्यादा जिए, ये सारे दुआ करें मेरे लिए कि इनकी जो लोग जिंदगी। देख रहे हैं, हाँ, वो लोग जो आपको जानते हैं, आपकी वजह से ये दुआ मांगे कि ये मेरे से ज़्यादा जिए। आप ये ख्वाहिश रखती हैं? ये ख्वाहिश, ये इल्तिजा है मेरे अल्लाह ताला से, मेरी दुआ है अल्लाह पाक से आखिरी कि अल्लाह ताला इनको मेरे से ज़्यादा जिंदगी दे। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बेटा। अच्छा, एक इनमें बेटा। से आपका एक बेटा है। पहले हस्बैंड में से बच्चे नहीं थे? नहीं थे। ठीक है, बेटा कितने साल का? माशाल्लाह। बेटा मेरा माशाल्लाह 14 साल का है। अच्छा, माशाल्लाह से। माशाल्लाह। तो ये आपसे जब शादी हुई तो रिटायर हो चुके थे उस वक्त? जी। आर्मी से? जी जी 17 ग्रेड के आपने बताया, जी। ऑफिसर रिटायर? हाँ जी। ठीक है, 17 साल बड़ी तेजी से गुजर गए हैं। भाई तेजी से गुजर गए हैं, बहुत ज्यादा तेजी से। वो तेजी से ऐसे कि इतने अच्छे इंसान के साथ जब भी कोई बंदा आपको अच्छा मिल जाए तो उसके साथ चंद लम्हे, घंटे भी गुजरे तो आपको लगता है थोड़ा वक्त गुजरा, मिनट ही गुजरे हैं अभी, तो मुझे भी ऐसे ही लगता है। 17 सालों में जो आपने ख्वाहिश की इन्होंने पूरी की? मुझे लगता है कि बहुत सी ख्वाहिशें मैंने इन्हें बताई नहीं थी, मैं सोचती थी और ये तो पूरी कर देते ये हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमने उधर जगह ली है और बेटे के नाम पे दुकानें बना रहे हैं, वो मैंने दिल में सोचती थी कि अल्लाह ताला मेरे बेटे के पास, इनके पहले बच्चों के पास हैं, अच्छा। मेरे बेटे के पास नहीं है, तो मैंने इन्हें बताया नहीं था। अच्छा, नहीं बताया था, तो वो एक दिन अचानक ही प्लान बना और जल्दी से 15 दिन के अंदर अंदर वो नाम पे हो गई। ठीक है। तो वो देखे ना अल्लाह ताला कैसे, और ये कैसे मेरे ज़हन की बात समझ जाते हैं। मैं इनसे बात करती हूँ फिर वापस आपसे करती। जी अस्सलाम वालेकुम। खान साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप आज भी 65 के ही लगते हैं। नहीं 17 साल पहले भी आप 65 के थे, आज भी 65 के। क्या खाते हैं आप? अपनी डाइट भी बताएं, लोग जानना चाहेंगे। मैं नॉर्मली आप ना थोड़ा ऊंची बोले जी। नॉर्मली रोटी खाता हूँ अच्छा, और फ्रूट शूट खाता हूँ। फ्रूट खाते हैं? हाँ, ठीक है। नहीं वाकई आज आपकी एज वाकई आज 80 साल है। 80 से भी ज़्यादा है, कितनी? मेरे ख्याल 82 होगी। 82 है, लेकिन आज भी आप 65 के ही लगते हैं। बस ठीक है, लगता है आपने 65 का ये पहाड़ा पड़ा हुआ है इनके साथ शादी अल्लाह करके। का फजल है, गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है? आप 65 के गुजारा हो रहा है। अच्छा, जब इन्होंने शादी का पैगाम भेजा इनकी नानी ने, जी तो आपने कहा नहीं कि वो तो मेरे से बहुत छोटी हैं, यानी कि इनके अब्बू भी शायद उस टाइम आपसे छोटे हों? दरअसल मेरी भी ज़रूरत थी, जी। तो इसकी नानी ने मुझे कहा था कि आप शादी कर ले इसके साथ। अच्छा, तो मैंने वो बात मंजूर कर ली उनकी, ठीक है। और कुछ दिनों बाद शादी हो गई। ठीक है, जल्दी होगी शादी? ना कुछ दिनों बाद 2-3 माह के अंदर अंदर। अच्छा, आपकी जिंदगी के 17 साल का ये अरसा कैसे गुजरा, मैं ये जानना चाहूंगी। लोग तो बड़ा लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बीवियों की शिकायतें, मर्दों की शिकायतें, शोहरों की नहीं, शिकायतें नहीं खत्म नहीं, होती। मुझे कोई शिकायत नहीं है, अल्लाह का फजल है, ठीक वक्त गुजरे। जी। 17 साल कैसे गुजरे? ठीक नॉर्मल लाइफ जाती है। अच्छा, आप इनको कहाँ कहाँ घुमाने लेके गए? हनीमून पे कहाँ गए थे? कहीं नहीं गए, क्यों? बस नहीं गए।
नहीं लेके तो जाना चाहिए था, इतनी प्यारी हमें आपकी शरीर दुल्हन लेके थी। जाते हुए हैं। अच्छा। हमें शरीर जाते हुए हैं हम अक्सर। मरी जाते रहे। हाँ शादी के बाद हनीमून पे नहीं लेके गए? जब शादी हुई है मैं उस वक्त इस्लामाबाद में रहता था। अच्छा, इस्लामाबाद में थे। इस्लामाबाद घुमाया आपने इनको? बहुत ज्यादा नहीं उधर अपना घर बनाया हुआ था, वो फिर बेच दिया, फिर ये बना दिया। ठीक है। नहीं, घुमाया भी काफी। आपने इनको इस्लामाबाद तो घुमाया होगा, सैर हाँ सपाटे। उधर तो घूमते रहे। काफी घुमाया। ये आपसे बड़ी मोहब्बत करती है, कहती है मोहब्बत बड़ी छोटी सी चीज है, उसके ऊपर का कोई लेवल है जो इन्होंने किया है। क्या ये सच है? हाँ ठीक। इनके दिल की जो ख्वाहिशें हैं वो बस ऐसी होती हैं कि इनको पता होता है इनके दिल में होती है। आप वो कैसे जान लेते हैं? बस जो काम मुझे ये कहती है, जो चीज़ कहती है मैं कर देता हूँ। अलग से जो भी कहती हैं, जो नहीं भी कहती। ये जायज जायज ही बात जी, जी। करती है, वाकई ज्यादा। हाँ जी। लिमिट में बातचीत करती है ना। आप आर्मी ऑफिसर रिटायर हुए और ये 5वीं पास है, प्राइमरी पास, तो ये भी एक क्लैश था एजुकेशन का भी, एज का भी। तो फिर ये मैनेज कैसे हुआ, मुझे ये समझ नहीं आ रही। आप भी इनसे मोहब्बत करते थे शुरू में चोरी चोरी, या इनकी तरफ से जब पैगाम आया तो शुरू में करते थे? वाकफियत ही नहीं थी ना पहले। हाँ तो जब ये आ गई तो इसने घर को सही तरीके से चलाया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो आपकी फिर मोहब्बत बढ़ती गई। हाँ मैंने सुना कि आप इनके लिए गाना भी गाते हैं। वो तो बस जिंदगी में जो मामूल होते हैं चलते रहते हैं। तो तू जो नहीं है ओए तो होए, कुछ भी नहीं है, थोड़ा ऊंची। ये माना कि महफिल जवां है हंसी है। क्या आप मैं बस अल्लाह ताला से दुआ ही है कि अल्लाह पाक इनको सलामत रखे मेरे साथ। वो तो अल्लाह रखेगा इंशाल्लाह। बाकी आपने मैं गाना शाना इनके लिए नहीं गाती। अच्छा। मैं आगे से कहती होती हूँ चुप करें। आवाज इतनी बुरी लगती है। बहुत अच्छी लगती है, हाँ लेकिन वो एक स्टाइल होता है ना शर्माने का, जी। तो वो इनको अच्छा भी लगता है। तो वो मैं होता भी है कि बस इतना ही काफी है। अच्छा, जब ये गाते तो आप कहते इतना ही काफी है। हाँ इतना ही काफी। खान साहब, आर्मी में आपने कितना अरसा गुजारा? मैंने कोई 28-29 साल। ठीक है। आपने 2 जंगें भी लड़ी, जी। कौन कौन सी? 1965 की जंग में मुझे 17 अरब मिला अच्छा और तमगा जंग भी मिला है। 71 में भी तमगा जंग मिला है। ठीक है। दोनों में। दोनों जंगों में जी। आपने इनको सुनाया होगा, वो बड़ी दर्दनाक जंग थी। जाहिर हमारे इतने नौजवान जो थे उस सुनाते हैं, वक्त शहीद हो वजीराबाद गए। में भी बहुत मसले गए थे ना। नहीं, आर्मी के जिस हिस्से में मैं था ना उसके पास आर्मी के सारे स्टोर होते हैं। ठीक है। एमिनेशन, आर्म्स, एमिनेशन, क्लोथिंग, सिग्नल स्टोर सब होते हैं। ठीक तो है। हमारा काम था उनको सही टाइम पे सही जगह पे सही चीज़ देनी, ठीक है। तभी जंग लड़ सकते हैं। जी जी। अगर गन और कैलिबर की हो तो गोला किसी और कैलिबर का चला जाए तो वो नाकारा होता है बिल्कुल। जी जी। तो उसके मुताबिक सही टाइम पे सही चीज़ को इशू करना, ये काम था हमारा। आपकी पहली बीवी और बच्चे, आप अब उनसे आप मिलते हैं, खुश हैं? बस वो ठीक है मेरे साथ। अभी भी ठीक है? आते जी। बीवी भी आती हैं? हाँ। और आपकी पहली बीवी की एज कितनी है? उसकी मेरी हम उम्र है वो। अच्छा वो आई है एक या 2 दफ़ा आई है इधर। ठीक है, मिलने के लिए? अभी मैं उनको बीवी को खर्चा वगैरह देता हूँ। अभी भी देते हैं? हाँ। ठीक है। अभी 2-3 दिन हो गए 10,000 रुपये भेजे हैं। अच्छा, आपको कितना खर्चा मिलता है? 17 साल? 10,000। 17 साल से ही? 17 साल। पहली दफा जब इन्होंने मुझे पैसे दिए ना, वो 500 का नोट था। वो पेंशन में से नहीं दिए थे, वो प्रॉपर्टी का काम करते थे उसमें से। तो वो 3-4 दिन मुझे पहले कभी किसी ने दिया ही नहीं, 50 रुपये भी। तो वो 3-4 दिन गुजरने के बाद मैंने कहा वो आपके पैसे पड़े हैं तो वो ले लें। कहते हैं वो मेरे नहीं है, वो तुम्हारे हैं, बेशक खाओ, बेशक किसी को दे दो, अच्छा, जो मर्जी कर सकती है, तुम इस्तेमाल करो उनका। फिर? तो वो पहली दफा इन्होंने मुझे तो जो नोट दिया था वो मुझे आज दिन तक भूला नहीं है। 500 का? 500। 17 साल पहले? 17 साल पहले। फिर 17 उसके साल- बाद ये ऐसे ही देते हुए 10,000, जैसे ही पेंशन लेके आते थे तो मुझे 10,000 रुपया निकाल के दे देते थे। तो अब भी बाज औकात 28-29 को ही ले आते हैं पेंशन, ठीक है। तो ये मुझे 10,000 ही देते हैं अब भी। 17 सालों से ना बढ़े हैं ना कम हुए हैं। नहीं। इसकी वजह क्या है? 17 साल से अब 10,000 ही दे रहे हैं।
ना तरक्की हुई है ना कमी हुई है। देने ना देने का क्या मतलब है, सारे पैसे इधर ही खर्चे। ये भी बात क्लियर है। ये तो मैं भी सोचती हूँ कि अपनी जात पे कुछ नहीं खर्चते ना। ये हाँ, वो आप अपनी केयर नहीं करते, इनका गिला है। मैं करती हूँ इनकी केयर तो। अच्छा, ये कहते हैं ना कि मैं फ्रूट खाता हूँ, पूछे ना कौन सा खाते हैं वो, कौन तो सा जब तक fruit? मैं ना काट के दूं, जब तक मैं ना लेके आऊँ, ये तो उठा के खाते भी नहीं है। सारे काम आपने करने होते हैं। इनका काम मैं बड़ी खुशी से करती हूँ। जाहिर आपके हस्बैंड आपने हाँ, करना तो ही वो है। मना करते रहते हैं, छोड़ तू थकी है, तुमने रोजा रखा हुआ है, तुमने ये किया, छोड़ दो इसको। तो मैं कहती हूँ नहीं, रोजा तो अल्लाह की जात के लिए है ना। हाँ, तो आपका ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी इनको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। नहीं, शुगर भी है। अच्छा, शुगर भी है इनको, तो बीपी का भी मसला रहता है। हम पहले दफा जब ये बीमार हुए थे, आज से 9 साल पुरानी बात है, कि हम इनको इधर पास एक हॉस्पिटल है उधर लेके गए, रहमान कम्प्लेक्स। तो उन्होंने कहा जी जो इनको बीमारी है, हमारे पास तो वो मशीनरी नहीं है, अच्छा, इनको बीमारी बहुत ज्यादा है, तो आप ना इनको सदीक सादक हॉस्पिटल गुजरांवाले का बड़ा हाई लेवल का हॉस्पिटल है, आप उधर ले जाए। तो अच्छा। रात का टाइम था। इनकी एक बहुत अच्छी आदत है, मैं खुश होती हूँ लेकिन इनको ये बात नहीं पता कि रात को चेंज करके सोना है इन्होंने, ठीक है, मतलब के फौरन बाद चेंज करते हैं ये, ठीक है। रात का ड्रेस अलग है। तो वो रात का टाइम था, तो इनको लेके गए हम सदीक सादक हॉस्पिटल। उन्होंने इनका ड्रेस देख के, नाइट ड्रेस, कहते हैं जी तुसी ये ना गवर्नमेंट अस्पताल ले जाओ। मैंने कहा आप इनका एडमिशन करें, इधर दाखिल करें इनको, तो जो एडमिशन फीस है वो बताएं। तो अच्छा, बाकी मैं देती हूँ, तो सुबह तक इंशाल्लाह बैंक खुलेंगे, हम पैसे ले आएंगे वो ज्यादा। अच्छा, फिर वो उन्होंने दाखिल किया, तो वो 8-9 दिन इनको आईसीयू में, इमरजेंसी में रखा उन्होंने। ठीक है तो 8-9 दिन ये बात वैसे ये बताते तो ज्यादा अच्छा था। जी। बताएं आप, जब आप इमरजेंसी में 8-9 दिन एडमिट रहे। 2-3 दिन तो मुझे होश ही नहीं थी। नहीं थी, नहीं, बल्कि 8-9 दिन होश नहीं आई थी इनको। अच्छा, और मैंने वहां पे किसी दूसरे बंदे को एक सेकंड के लिए भी ये नहीं कहा था कि ये आप आपके पास रही। उसके बाद जब मैं संभल गया ना, तो डॉक्टर कहता बाबा जाके आ गए। जाके, और ये तो उन्होंने मुझे कहा था। और फिर जब ये दोबारा उनके पास मेडिसिन लेने गए, तो हफ्ते के बाद, घर आने के हफ्ते के बाद ये मेडिसिन लेने गए, तो वहां की लेडी डॉक्टर ने इन्हें कहा कि आपकी बीवी बहुत अच्छी। उन्होंने बताया आपको? नर्स थी। अच्छा, तो ये आप तो बेहोश थे, ये आपके पास ही थी दिन रात, उधर ही देख रही थी। आपकी केयर की आप? गुजरांवाले में है दिल का अस्पताल। अच्छा, आप कहती हैं शुगर होती है तो आपको? आप यकीन करेंगे कि मैं सिमे तो रोज दी थी जिस दिन ये हॉस्पिटल थे। मैंने कहा मुझे कोई किसी किस्म की कॉल ना आए, मैं कोई कॉल नहीं सुनना चाहती, मैं फोन नहीं देखना चाहती। और इतना इनके लिए दुआएं और पढ़ा था, आयतल कुर्सी, दुरूद शरीफ, कुल शरीफ इतनी ज्यादा पढ़ी थी कि मेरा मुंह भी खुश्क हो जाता था। आप यानी कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए? ठीक हो जाए। आपकी ये ख्वाहिश क्यों है कि आप आपसे ज्यादा लंबी ये जिंदगी पाएं? इस्लामाबाद जाते हैं ना हाँ। आंखों के लिए, सुबह जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। ठीक है। लेकिन जिस दिन ये जाते हैं, वो मेरा अल्लाह और मैं जानते हैं कि मुझे ये घर अच्छा नहीं लगता। 17 सालों में आप एक दिन भी जुदा नहीं हुए? नहीं। आप अपनी अम्मी के घर नहीं गई इनको अम्मी का छोड़ के? घर पास है। अच्छा, तो वो मुझे अक्सर कहती हैं कि छोटी बहन भी जाती है, तो अब रात को भी वो गई है, कहती है आओ चले। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना। तो जाए तो वापस आ जाते हैं। तो अगर रात कभी कभार मुझे लगता है कि या 2 दफा रुकी हूँ, तो मुझे नींद नहीं आती, इनके बगैर नहीं आती। आप इस्लामाबाद जाते हैं, जब इनको साथ ही ले जाया करें, वो 8-10 घंटे का जो बीच में वक्फा आता है। कभी कभार बेटे को ले जाता हूँ साथ। आप घर पे ही रहते हैं? मैं घर पे, फिर वो बकैयों को- अल्लाह ने आपको बेटे से नवाजा है, आपकी शुक्र जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरी है। साख में ना मरज हो जाता है, अब भी हो गया इन दिनों में। अच्छा, अभी मैं 1-2 दिन बाद जाऊंगा इस्लामाबाद, वो शिफा आई अस्पताल है उसमें। जी जी। और जाने से पहले ही वो मुझे अजीब ही फीलिंग महसूस होने लग जाती है, जैसे ये जाने का कहते हैं ना, तो मेरा बीपी हाई हो जाता है क्यों जा रहे? कि मैं अकेली रहूंगी, जब तक आएंगे नहीं मेरी सांस अटकी रहती है। जी, ये है मियाँ बीवी की देखें एक मिसाली मोहब्बत। मेरे ख्याल में बहुत कम ऐसे कपल हैं जो इस तरह की मोहब्बत करते हैं, वरना तो लोगों के गिले शिकवे नहीं खत्म होते। क्यों जी? यही है ना कि लोग गिले करते नहीं, हैं। गलत करते हैं ना। दोनों को चाहिए कि एक दूसरे का, ये भी मेरा ख्याल रखते हैं, ये ख्याल रखते हैं। तो इतना वक्त अच्छा गुजर गया, 17 साल गुजर गए। 17 साल। और वो जैसे मैंने आपको बताया कि ये 10,000 मुझे महाना देते हैं, वो सिर्फ इसलिए देते हैं खाओ पियो ये जो मर्जी करो, उसके अलावा मुझे कोई जुती कोई कपड़ा चाहिए उसके अलग से पैसे देने हैं। कि अच्छा। कितने का लेना है तुमने सूट, क्या उसके अलग पैसे हैं, वो उसमें से मैंने कपड़े जुती नहीं लेने।
तो अगर उन पैसों में से कभी नमक मंगवा लूं, ये होते हैं मियाँ बीवी, नमक मंगवा लूं तो वो आते ही कहते हैं कि तू लोन मंगवाया सी, ए ले 50 रुपए। क्या बात है, यानी कि जो आपके 10,000 है उसमें से कभी अगर आप पत्ती या चीनी या नमक मंगवा लें तो आते ही इन्होंने कहना है ये पकड़े अपने पैसे, ये पकड़े। और आज तक इन्होंने आपसे 10,000 रुपए का हिसाब नहीं लिया। नहीं लिया। 17 मैं सालों किसी में। को दूं, खुद खर्चूं या जो मर्जी करूं, इन्होंने कभी नहीं पूछा कि मैं कभी कह दूं कि मैंने ये किया है तो कहते हैं कि मैंने पूछा तो नहीं है ना तुमसे, वो तुम्हारे थे, तुम जो मर्जी करती। जी 15 मिनट हो गए, 22 मिनट हो गई, बस ये खत्म होने लगी। अच्छा जी, आपकी जोड़ी इस तरह से ता क़यामत सलामत रहे और आप इंशाल्लाह जन्नत में भी दोनों मिलेंगे, ये भी मुझे रब पे यकीन है इंशाल्लाह। क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को जो मियाँ बीवी लड़ते झगड़ते हैं, छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देते हैं? बस लोगों को चाहिए एक दूसरे की इज्जत करें जी, इज्जत। और अच्छे तरीके से रहें, लड़ाई झगड़े में तो कोई फायदा नहीं। जी 17 सालों में कभी लड़ाई नहीं हुई? छोटी मोटी नोक चोक मनाता कौन है? इतनी नहीं होती। मनाता कौन है? मनाने की मुझे तो इनसे कभी कोई गिला शिकवा नहीं रहा, अल्लाह का शुक्र है, कभी भी कि ये मनाने का वक्त आए। हाँ। तो मैं कभी कभी थोड़ा ऊंचा बोलूं ना तो फिर ये कहते हैं कि तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे, तो वो यही कह देते हैं। मैं कभी कभी गुस्सा, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा बीपी फौरन हाई हो जाता है कि जब ये कहीं जाने का नाम लेते हैं तो ये गुस्सा करके जाने लगते हैं ना कि मैं जी आना चक्कर लाके, मैं चक्कर लगा के आता हूँ। तो मैं इनको जैसे गेट के पास पहुंचते हैं तो मैं पूछती हूँ चाय पीनी है, तो वापस आ जाते हैं कि चलो जी बनाओ चाय। और चाय इनको मेरे हाथ की बहुत ज्यादा पसंद है, और मेरे पास इससे ज्यादा अच्छा तरीका भी नहीं है बनाने का, आसान तरीका भी नहीं है। एक चाय का कहना तो अल्लाह का शुक्र है कि बात खत्म हो जाती है और वापिस आ जाते हैं गेट से। गेट। किसी के घर भी जाते हो ना, यानी कि भाई भाभियां अम्मी अबू सारे साथ साथ रहते हैं ना जी, तो जाते होते हैं तो मैं कहूँ ना कि चाय नहीं पीनी, तो कहते हैं चलो फिर चाय पी के चलते, यानी कि ये नहीं कहते कि उनके घर चल के पियेंगे, कहते हैं कि तुम्हारी जैसी चाय नहीं वो बनाते। क्या बात है, आपको इनकी चाय बहुत पसंद है, मजे के। खाना कैसे बनाती हैं? खाना भी ठीक नहीं। आप रूल्स के बड़े पक्के होते हैं, आर्मी वाले टाइम के बड़े पाबंद होते हैं, तो क्या ये मैनेज हुआ 17 सालों में? हाँ सही हो जाए। क्या बात है, क्या पैगाम देंगी आप? मैं यही कहूंगी कि वही बात है ना कि लोगों को चाहिए दोनों साइडों से एक दूसरे को समझे। ये क्या कि 2 दिन होते हैं शादियों को तो लोग कहते हैं कि जी नहीं रहना, हमने साथ ही नहीं रहना, तलाक दे दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल। थोड़ा वक्त दोनों साइडों से कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। तो मैं आपको यकीन नहीं करेंगी, मैं बाहर बैठी हूँ तो इनकी शुगर अंदर लो हो जाए तो इनको होश नहीं रहती कि मेरी शुगर लो हो गई है। अच्छा, तो मुझे सोए हुए भी अल्लाह ताला जगा देते हैं कि इनकी शुगर लो हो जाए, तो मुझे ऐसे हाथ पकड़ने से ही आइडिया हो जाता है, इनका जिस्म ठंडा पड़ जाता है जब शुगर लो हो जाती है, तो पता चल जाता है। उसी वक्त मुंह में चीनी खजूरें हम रखते होते हैं शुरू से, ठीक। तो 2 माह नहीं, सोन भादों का जो महीना, गर्मियों का जो सख्त, उनमें नहीं रखते, तो वो इनको मुंह में डालनी। इनको होश भी नहीं, ये इनको होश तब आती है जब यानी कि वो शुगर लेवल नॉर्मल, शुगर भी चेक करती है, यानी कि ऐसे ठूसी जाओ तो बाद में पता चले कि शुगर तो पहले ही हाई थी, तो वो चेक कर, पहले जब जैसे ही डाउट होते हैं ना उसी वक्त चेक करती हैं। जी जनाब, इनका बड़ा खूबसूरत पैगाम है कि आप एक दूसरे की इज्जत करें। मियाँ बीवी का रिश्ता जब ही कायम रहता है जब वो दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं। जब इज्जत होती है तो फिर प्यार मोहब्बत और भी बढ़ता है। तो इनकी बड़ी मिसाली ये जोड़ी है, और ये कहती है कि आज हमारी शादी को 17 साल हो गए, जब 40 साल हो गए तो फिर भी एक इंटरव्यू देंगे इंशाल्लाह। उस वक्त इनकी उम्र हो जाएगी 103 साल। अगर मेरी जिंदगी रही तो दोबारा से हम कंडक्ट करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे आपकी 40 साल शादी की। क्यों नहीं? इनकी बड़ी ख्वाहिश है कि 40 साल जब शादी को गुजरे तो दोबारा एक इंटरव्यू होना चाहिए। तो बड़ा अच्छा एक कपल है माशाल्लाह से, माशाल्लाह, अल्लाह इनको कायम दायम रखे। और मैं सोच के हैरान हूँ कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को पैसे दे रहे हैं पिछले 17 सालों से और आज तक उन्होंने हिसाब नहीं मांगा। इससे बड़ी मेरा नहीं मांगा। आई हैव नो वर्ड्स कि इसको और एक्सप्लेन किया जाए। क्या आपने इस स्टोरी, इस कपल की स्टोरी को जानकर क्या आपने ऑब्जर्व किया? कमेंट सेक्शन आपका है, अपनी राय का इजहार करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।